So let's start today's session. So in the last session, we were discussing about search results that we need to do the ranking. So whenever we are searching for any terms, we need to do the ranking. Now for ranking, in the last class we discussed about first we discussed about the Jaccard coefficient. That by using Jaccard coefficient, we can see that whether if something is existing in a document, then it will come 1. If it is not in the document, then it will come 0. But we know that this is not a sufficient measure because we are not counting the frequency of occurrence. So then we come out with the term frequency. So in the term frequency, we decided that we will count the frequency of that particular term in which a document occurs. If it occurs more frequently, then document is more important to us. But just to express the scale, we were we were taking the log of the term frequency that we are getting for a particular term in a document D, and then we were adding just one to avoid log of 0. So there is term frequency always 1 just to manage that. Then we discussed that for rare terms, for some terms which are very rare, so obviously their term frequency is going to be very less. So in that case, we need to know about the document frequency. So obviously they are coming in very less number of document, their document frequency is also less. So when document frequency is less, obviously their inverse of document frequency will be more. So here we actually ended in the last lecture that we can have for rare terms, we can have the inverse document frequency. Obviously, rare terms have less document frequency but more inverse document frequency. So we can simply take here in this formula, we can simply take a log of 1 upon df as well for a particular term that, but multiplying with n will always give us a scale on which we are talking. So if we have a collection of, let's say, 10,000 document, then obviously it is scaled to that. If we have a 1 million document, then by using n we can scale up to that particular thing. So that's why inverse document frequency we use this formula, and this base is immaterial. You can use any base. You can use 2 depending upon that how much you want to scale it up. So this base is immaterial. So you can use any base, 3, 10, whatever you like. Since in most of the computer, 2 is already there in the processor, so we may go with the 2 or with the 10. So it is up to us that what base we want to use. Now this is one example that we can also relate very easily. Let's say we have 1 million documents. So total collection is 1 million. Now this term California, so its document frequency, it is coming only in one document. Animal is coming in 100 document. Sunday is coming in 1000. Fly is coming in 10,000. Under is coming into 1 lakh. And the is coming in every document, 1 million document. Now if we calculate this, n upon df by d. So n is 1 million. So 1 million divided by the document frequency. So 1 million divided by document frequency is 1 million only. In case of California, so 1 million divided by 1 is 1 million only. In case of animal 1 million divided by 100 is 10,000. For Sunday, 1 million divided by 1000 is 1000, and similarly for others. So n by dft we can calculate, then we can take log. So log you can see that coming 6, 4, 3, 2, 1, 0. So we can see that California, which is very rare term coming into only one document, so its value is coming highest. So that's why IDF for California, which is rarest term in this collection, has the highest value. But even if we have taken log 2, still
the results are same. Still we are getting the higher value for this. Still the results are same. So it doesn't matter whether we are taking log 10 or 2. So we are going to get the same results. So using IDF, we will get more weight to the rare terms. So the rarest term will get the more weight. Is this clear? ये clear है सबको? Yes, sir. So now, but IDF itself is not a. अगर हम इसको अकेले को use करें, then it is not a very good metric. So effect of IDF on ranking, like for one term, अगर एक ही term के लिए हम use करें, so effect is not. Let's say आप iPhone search कर रहे हो, then it doesn't have any effect. One term query पे कोई effect नहीं होता. It is required only in two term queries like this capricious person. If you remember, कल मैं आपको examples कैसे दे रहा था, मैं I am giving disease का नाम मैं लिख रहा था Acanthophobia, which is a rare term, और फिर disease लिख रहा था. Disease is a common term. ये काफी डॉक्यूमेंट में आ रही है और ये काफी कम में आ रही है. So जब क्वेरी में दो टर्म होती है तभी IDF का इफेक्ट दिखता है, अदरवाइज IDF का इफेक्ट नहीं है. अगर सपोज मैं सिर्फ कैनोफोबिया सर्च करता तो मे बी ये अगर सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट में आ रही है तो वही 4 रिजल्ट आते क्योंकि आई एम सर्चिंग फॉर दैट. बट अगर मैं दो टर्म सर्च करता हूँ कैनोफोबिया और डिजीज, सो व्हाट वुड हैपन, क्योंकि डिजीज काफी टर्म डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो सारे रिजल्ट डिजीज से रिलेटेड आते हैं और एर्केनोफोबिया से रिलेटेड रिजल्ट खत्म हो जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी लेस. सो दैट्स व्हाई IDF का यूज करने का तभी फायदा है अगर हम एटलीस्ट दो टर्म की क्वेरी हो, तभी हमें एर्केनोफोबिया को भी वेट देना है बिकॉज इट इज कमिंग इन लेस टर्म्स. वी वांट टू गिव वेटेज टू दोस डॉक्यूमेंट्स वेयर इट इज कमिंग. सो दैट्स व्हाई इट IDF का रिक्वायरमेंट तभी हो गया अगर दो या उससे ज्यादा टर्म्स हो गए. फॉर एग्जांपल लाइक कैप्रिशियस पर्सन. सो पर्सन हमें पता है कि काफी कॉमन टर्म है, बट कैप्रिशियस इज नॉट अ कॉमन टर्म. सो दैट्स व्हाई IDF हैज इफेक्ट ओनली व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म. सिंगल टर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. Now there is another confusion which comes to our mind, collection versus document frequency. collection frequency क्या होती है कि टोटल कितनी बार कोई टर्म आई है. जैसे एग्जांपल के टर्म पे इंश्योरेंस. इंश्योरेंस टोटल तो आई है 10,440 टाइम्स, बट कितने डॉक्यूमेंट में आई है? डॉक्यूमेंट में 3,997. अब ट्राई आल्सो कम्स, उसके भी टोटल कितने, हर सभी डॉक्यूमेंट में अगर ऐड ऑन करें तो इतनी बार आई है, बट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सो दिस डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट में आई है. सो 8760 डॉक्यूमेंट में आई है. सो नाउ व्हिच वर्ड इज बेटर सर्च टर्म? इनमें से कौन सी रेयर है? इंश्योरेंस रेयर है कि ट्राई रेयर है? व्हिच वन इज रेयर? यस एनीवन? इनमें से कौन सी टर्म रेयर है? यस एनीवन? सृष्टि, शानी, दीक्षा? सर बिटवीन इंश्योरेंस एंड ट्राई. हाँ, इंश्योरेंस एंड ट्राई में कौन सी रेयर है? सर अगर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी कम है एज कंपेयर टू ट्राई, तो इंश्योरेंस होगा. सो इंश्योरेंस कम डॉक्यूमेंट में आ रही है, सो इंश्योरेंस इज रेयर टर्म. इवन दो दोनों की कलेक्शन फ्रीक्वेंसी तो ऑलमोस्ट सेम है. कलेक्शन फ्रीक्वेंसी तो दोनों, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? द काउंट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, सभी में जितनी बार आई है सबको ऐड कर देंगे तो वो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी है. सो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिविंग अस एनी मीनिंग. मे बी कोई एक टर्म एक डॉक्यूमेंट में बहुत बार आई है तो, बट वो ज्यादातर डॉक्यूमेंट में नहीं आती. तो जैसे इंश्योरेंस है और ट्राई, इन दोनों की कलेक्शन फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बट इंश्योरेंस कम डॉक्यूमेंट में आई है. सो दैट्स व्हाई इंश्योरेंस इज मोर. सो दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना हमने, ना कि कलेक्शन फ्रीक्वेंसी को. सो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट दैट, व्हाई वी आर कंसीडरिंग डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी
बिकॉज कलेक्शन फ्रिक्वेंसी कई बार सेम हो सकती है, बट स्टिल डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी को ही कंसिडर करना है। तो जब भी हमने फार्मूला लेना है एन बाय द डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी, सो हमें डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी को ही कंसिडर करना है, नॉट द एक्चुअल कलेक्शन फ्रिक्वेंसी। जो हमारी पोस्टिंग है, पोस्टिंग में कलेक्शन फ्रिक्वेंसी आती है। इफ यू रिमेंबर, जब हमने इंडेक्स बनाया था, हर टर्म के साथ जो हमने फ्रिक्वेंसी लिखी थी, सो दैट वाज कलेक्शन फ्रिक्वेंसी। और डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी कहां से आएगी? एक्चुअल पोस्टिंग में जितनी डॉक्यूमेंट में वो आ रही है, वहां से डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी आएगी। So collection frequency is different and document frequency is different. So this is very common question, that what is the difference between collection and the document frequency. So जो रेयर है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगी, यानी कि जो कम डॉक्यूमेंट में आएगा उससे ज्यादा वेटेज मिलेगी। Now since IDF itself is not very good measure, ये तो सिर्फ वेट देने के लिए है रेयर टर्म को, बट वी नो डैट कि टर्म फ्रिक्वेंसी, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट में टर्म ज्यादा आ रही है उसकी रैंकिंग हायर होनी चाहिए, बट हमने दोनों को कंबाइन करना है। सो आईडीएफ हमें वेट दे रहा है, तो इस वेट को, आईडीएफ से जो हमें वेट मिल रहा है, इस वेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी रेयर टर्म का वेट ज्यादा होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है जो टर्म फ्रिक्वेंसी का हमारा फार्मूला है। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ टर्म फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई विद द आईडीएफ वेट। सो दिस is combined matrix is called the TF IDF matrix. So इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, TF IDF is not ये माइनस साइन नहीं है, तो इसलिए आप जब देखो कोई TF डॉट IDF लिखता है, बट इसको भी कई बार लोग मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। सो दिस इज ए TF IDF, ज्यादातर हाइफन करके लिखा जाता है, तो दिस इज वेरी कॉमन मैट्रिक्स। IDF क्या दे रहा है? इट इज गिविंग अस ए वेट which is more for the rare term, जितनी रेयर टर्म है उतना ज्यादा वेट होगा। और इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कितने डॉक्यूमेंट में वो टर्म आ रही है। फिर हमें टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर डॉक्यूमेंट वाइज, तो ये वेट क्या निकलेगा? डॉक्यूमेंट वाइज। तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में वो टर्म कितनी बार आ रही है, वो हमारी टर्म फ्रीक्वेंसी है, वो निकालेंगे। तो इससे हमें हमारा टर्म फ्रीक्वेंसी का मैट्रिक आएगी। सो टर्म फ्रीक्वेंसी मैट्रिक मल्टीप्लाई करेंगे हम आईडीएफ वेट से। सो दिस टोटल इज कॉल्ड द टीएफ आईडीएफ वेट। सो दिस इज द टीएफ आईडीएफ वेट। सो इट इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ अकरेंस। जितनी ज्यादा टर्म फ्रीक्वेंसी ये इंक्रीज करेगा, बट रेयर टर्म को वेटेज देके रखेंगे हम। रेयर टर्म्स की वेटेज ज्यादा होगी तो वहां मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। सो इंक्रीज विद द रेयरिटी एज वेल। तो यानी कि दोनों चीजों को कवर कर लिया हमने, टर्म फ्रीक्वेंसी को भी और रेयरिटी को भी कवर कर लिया। दैट्स व्हाई दिस टीएफ आईडीएफ वाज वेरी पॉपुलर। ठीक है ना, आई एम यूजिंग वाज, यानी कि इट इज, अभी इससे भी बेटर मैट्रिक्स है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वाज। सो इट वाज वेरी पॉपुलर मैट्रिक, इवन तो अभी भी कई बार जब हमें छोटा सा कोई इंडेक्स बनाना होता है, so if somebody asks तो I would say कि TF IDF यूज करो। so I will share a Python file कि कैसे करना है ये। this is easy to do Python में अगर आपको इंडेक्स बनाना है ना, सपोज मैं आपको सपोज 1000 डॉक्यूमेंट देता हूँ, लेट्स से 1000 MB के थीसिस देते हैं, और आपने सबने देखा होगा कि शोध गंगा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक पोर्टल है, ये देखा हुआ आपने शोध गंगा? यस सर। इसमें पीएचडी थीसिस होते हैं, ठीक है। तो शोध गंगा जैसा अगर आपने सपोज आपके पास मैं 1000 MB थीसिस देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बनाना है, सो पाइथन में बनाना बड़ा इजी है। सो दिस इज, आपको यूज क्या करना है, पाइल्यूसिन करके एक लाइब्रेरी आती है, इसमें वो इंडेक्स कर देगी। ऐसे हूश करके लाइब्रेरी आती है, ये भी पाइथन की लाइब्रेरी है, ये आप लिख सकते हो, और ये सारे डॉक्यूमेंट इंडेक्स कर देगी। फिर आपको लगेगा कि मुझे गूगल सर्च इंजन जैसा इंटरफेस चाहिए, तो वो एक सोलर करके इंटरफेस आता है, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपकी वेबसाइट बन जाएगी जैसे गूगल सर्च इंजन होता है। एंड इट विल टेक ओनली 1 डे ऑफ टाइम। एक दिन में आप 1000
जितनी भी कलेक्शन आपकी है 1000 10,000, आप एक गूगल सर्च इंजन जैसा पूरा इंटरफेस बना सकते हो, और जैसे गूगल में सर्च करते हो वो वैसे ही सर्च करेगा। ये क्लियर है? बट अभी भी यू नो डैट कि भी गूगल में डायनेमिक इंडेक्सिंग कैसे होगी, कैसे इसको मैनेज करना है, सर्वर की कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है। अगर सपोज मैं पूरे वेब का इंडेक्स बनाऊंगा तो वेदर इट इज पॉसिबल टू डू इन दिस लाइब्रेरीज के क्या करना होगा। जैसे हमने मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर देखा था, देयर आर सो मेनी आर्किटेक्चर्स। सो एक्चुअली वहीं से फिर डिफरेंट बिग डाटा टेक्नोलॉजीज का अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। अदरवाइज अगर कोई मुझे 1000 डॉक्यूमेंट को करना है तो आई कैन मेक सिमिलर सर्च इंजन लाइक गूगल विद द सेम स्पीड। बट जैसे 1000 से मिलियन होंगे, मिलियन से बिलियन होंगे, और जैसे डायनेमिक होगा तब कॉस्ट फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। तब मुझे गूगल को compete करने के लिए एक बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। सो सिंपल लाइब्रेरीज यूज करके आई मे नॉट बी एबल टू compete विद द गूगल। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ईशानी, दीक्षा, अंचल? सो अब फाइनल स्कोरिंग कैसे करोगे आप? क्वेरी आपके पास आई है, ठीक है, क्वेरी में एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर तो एक ही टर्म है तो सिंपल, तो TF IDF उसका आप डॉक्यूमेंट में देखोगे कि उस डॉक्यूमेंट में उसकी क्या स्कोर है। बट अगर एक से ज्यादा है तो यानी कि पहली टर्म, सपोज टर्म 1 एंड टर्म 2, दो टर्म है, तो पहली टर्म का TF IDF T1 का उस डॉक्यूमेंट में, प्लस दूसरी टर्म का TF IDF दूसरी टर्म T2 का उसी डॉक्यूमेंट में। तो यानी कि दोनों का सम करोगे, अगर 3 है तो 3 का सम करोगे। तो जितनी भी टर्म क्वेरी में है उस डॉक्यूमेंट में सबका TF IDF निकालोगे, उनको ऐड करोगे। सो दैट इज द स्कोर ऑफ योर क्वेरी टर्म इन वन डॉक्यूमेंट। तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट का निकालोगे, फिर जिस डॉक्यूमेंट का ज्यादा होगा वो आपका फाइनल रैंक आएगा। सो इन दिस वे यू विल रैंक द ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये आपने जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी कि कितनी बार एंटनी इसमें आता है। तो अगर हम ये TF IDF लगा दें तो फ्रीक्वेंसी मैंने तब लिखी हुई थी कि भाई हाँ इसमें ये 10,000 टाइम आता है। तो अगर हम TF IDF लगा दें तो उसके वैल्यू ऐसे आ जाएगी सेम इंडेक्स की। सो लास्ट लेक्चर में मैंने पहले बताया था कि हम बाइनरी बनाते हैं 10 की टर्म आती है कि नहीं आती है। देन आई टोल्ड यू कि फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कितनी बार आती है। So now you can see that the same index can be changed to TF IDF score. So these are the TF IDF score. Now if somebody search for Caesar, we know that कि किस डॉक्यूमेंट के TF IDF ज्यादा है, तो वो नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 2 ये आएगा, नंबर 3 ये आएगा, नंबर 4 ये आएगा। So in this way we can rank this. So this is a simple ranking mechanism using the TF IDF. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फर्स्ट रैंकिंग क्राइटेरिया which is popularly used in the normal APIs. ठीक है, so now we move on to another thing. अब हमें TF IDF से थोड़ा हमने जगाड़ कोएफिशिएंट देखा, टर्म फ्रीक्वेंसी देखी, TF IDF देखा, नाउ मूव ऑन टू अनदर थिंग. अब हमें डॉक्यूमेंट्स को एज ए वेक्टर्स की तरफ जाना है। एक्चुअली ये जो चीज़ है यहीं फिर से डीप लर्निंग की तरफ, अगर लेटर इन दिस कोर्स हम जब करेंगे तो यहीं से हम डीप लर्निंग की तरफ मूव होंगे। एंड इसी में हम देखेंगे कि वाई TF IDF इज नॉट द ओनली मेजर वी शुड कंसिडर। सो अब हमें डॉक्यूमेंट्स को एज ए वेक्टर की तरह देखना है। सो डॉक्यूमेंट को वेक्टर की तरह देखने का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास इंग्लिश में 7 लाख वर्ड्स हैं लेट्स से।
बट लेट से मैं कुछ मेडिकल डोमेन में मैंने कोई प्रोजेक्ट करना है, और मेडिकल डोमेन में मेरे पास डॉक्टर्स की MRI रिपोर्ट्स हैं, और मैंने इसकी इंडेक्सिंग करनी है। सो MRI रिपोर्ट्स, डॉक्टर हर रोज 100 MRI रिपोर्ट लिखते हैं, और उन्होंने ऐसी 1 लाख रिपोर्ट्स हैं, मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है। आई फाउंड कि MRI रिपोर्ट्स में वो ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ 800 डिफरेंट वर्ड्स उन्होंने यूज किए। यानी कि MRI रिपोर्ट्स की जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो तो सिर्फ 800 है, इवन दो एक्चुअल इंग्लिश में 7 लाख या इससे भी ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। तो जितने मेरे पास वर्ड्स हैं जिस जो मेरे इंडेक्सिंग में, उतनी मेरी एक्सेस हो जाएंगी, जितनी मेरी टर्म्स हैं उतनी मेरी एक्सेस हो जाएगी। अगर मेरे पास 2 वर्ड्स हैं तो 2 एक्सेस हैं, अगर 3 वर्ड्स हैं तो 3 एक्सेस हैं, अगर 4 वर्ड्स हैं तो 4 एक्सेस हैं। जितने वर्ड्स हैं उतनी एक्सेस हैं। 800 वर्ड्स हैं तो 800 एक्सेस हैं, 7 लाख वर्ड हैं तो 7 लाख एक्सेस हैं। अब इन एक्सेस में क्या होगा, जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें जब भी टर्म आएगी, सपोज ये पहली टर्म आ रही है, कितनी बार आ रही है, सपोज ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है T1 को, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है T2 को, ये एक्सिस T3, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट T4, T5 ऐसे। और सपोज पहले डॉक्यूमेंट में T1 आ रहा है 3 बार, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू, और T2 आ रहा है 7 बार, तो उसकी वैल्यू उस एक्सिस में। सो अगेन वी विल स्टार्ट मेकिंग ए वेक्टर, भी वो कितनी बार वो वैल्यू उसमें आ रही है। सो हर डॉक्यूमेंट को हम अब एज ए वेक्टर की तरह देखेंगे। काफी हाई डिमेंशनल का हो सकता है, एज आई सी कि MRI इंडेक्सिंग में तो सिर्फ 800 वर्ड है तो 800 डिमेंशन का है, बट एक्चुअल इंडेक्सेस में तो टेंस ऑफ मिलियन डिमेंशन हो सकती है। एक वेब सर्च इंजन में तो हर डॉक्यूमेंट मिलियन डिमेंशन का होगा, और डिमेंशन मिलियन है बट डॉक्यूमेंट में वर्ड तो सिर्फ 2-3 हजार ही होंगे। सो यानी कि ज्यादा डिमेंशन में तो स्पार्सिटी होगी, ज्यादा डिमेंशन में तो कोई एंट्री नहीं है। सो हर टर्म के में कितनी बार आ रहा है, सो वो उसकी डिमेंशनलिटी है। सो इन दिस वे वी विल सी ईच डॉक्यूमेंट एज ए वेक्टर। अब जो क्वेरीज है वो भी हमारी वेक्टर्स होंगी। वी विल डू द सेम फॉर द क्वेरीज, वो भी वेक्टर्स की तरह ही आएंगे। अब हम क्या करेंगे, रैंकिंग क्या करेंगे कि जो क्वेरीज है और जो मेरा डॉक्यूमेंट वेक्टर है उनकी प्रोक्सिमिटी देखेंगे, वो कितने क्लोज हैं, उनकी सिमिलैरिटी देखेंगे। विल सी द सिमिलैरिटी ऑफ दीज वेक्टर्स। सो सिमिलैरिटी का मतलब इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस, कि कितना कम डिस्टेंस है उतनी ज्यादा सिमिलर है, जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना कम सिमिलर है। सो नाउ वी विल कंपेयर द वेक्टर्स। सो हमारा डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर आल्सो वेक्टर्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर वेक्टर्स, एंड जो क्वेरी है वो डेट इज आल्सो वेक्टर। सो अब हर क्वेरी को हम कंपेयर करेंगे हर डॉक्यूमेंट से, सो उनकी आपस में सिमिलैरिटी देखेंगे। सो वी आर डूइंग दिस बिकॉज हमें बुलियन मॉडल से दूर जाना है, हमें वी वांट टू गो अवे फ्रॉम बुलियन मॉडल। We want to rank more relevant documents higher than the less relevant documents. So that's why we are using this as a vectors. So अब हमें जब भी वेक्टर्स की तरह देखना है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? वेक्टर्स क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो मैं 2 टर्म को लेकर चलता हूँ। लेट से 2 ही टर्म है आपके पास, T1 एंड T2। आपके डॉक्यूमेंट में 2 टर्म है। सो पहली टर्म 3 बार आ रही है और दूसरी टर्म 2 बार आ रही है, तो डॉक्यूमेंट का वेक्टर क्या होगा, उसको एक पॉइंट मिलेगा। सो दैट पॉइंट इज 3 और 2 के बीच में। सो दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ दैट वेक्टर। सो अब वो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एक्सिस से इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए दिस लाइन। सो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 3T1, यानी कि T1 3 बार आ रहा है और T2 2 बार आ रहा है। सो एक जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, अब उसको हम
इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जितनी टर्म्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट से, और इस एक्सिस पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर लेंगे। अब आपकी जो क्वेरी होगी उसको भी सेम वे से करेंगे। अब क्वेरी भी आपकी इसी तरह से कि इसी वेक्टर स्पेस में होगी, एंड देन वी फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यू नो डैट कि ये कार्टेशियन स्पेस है, इसमें डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूक्लिडियन डिस्टेंस। बट यूक्लिडियन डिस्टेंस इज ए बैड आइडिया, बिकॉज अब ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से भी क्लियर हो जाएगा। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा? सपोज एक डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है और एक डॉक्यूमेंट काफी छोटा है और आपकी क्वेरी काफी छोटी है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस तो एंड पॉइंट का डिस्टेंस निकालता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है? एंड पॉइंट का डिस्टेंस निकालता है। सपोज मेरा ये एंड पॉइंट 3t1 2t2 है, और ये सपोज मैं x1 x2 से लेके चलता हूँ, x1 x2 है और ये पॉइंट x3 x4 है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या हो गया? x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस है। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स। सो अब अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है जिसमें टर्म्स काफी आ रही हैं, ऑब्वियसली उसके एंड पॉइंट से बड़ा दूर चला जाएगा, तो उसका वेक्टर काफी बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि वेक्टर्स सेम लेंथ के नहीं है। तो पहला तो पॉइंट है कि जहां तो उनकी लेंथ सेम की जाए, उनको नॉर्मलाइज किया जाए, तभी यूक्लिडियन डिस्टेंस लगा सकते हैं। या फिर हमें कोई और तरीका देखना पड़ेगा। वी नीड टू लुक अपॉन अनदर वे। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस जैसे ये d1 q, सपोज d3, ये d2 है। अब एक्चुअली q और d2 तो बड़े पास दिख रहे हैं, इनका डिस्टेंस काफी कम है, बट बिकॉज d2 इज अ वेरी लार्ज डॉक्यूमेंट, सो इनका एंड पॉइंट का डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू d1। सो दैट्स व्हाई इट माइट बी पॉसिबल कि हमें क्वेरी q d1 के पास लगे इवन दो इट इज क्लोजर टू d2। सो हमें करना क्या चाहिए? हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस के बजाय ये एंगल निकालना चाहिए। वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो अगर हमें दो वेक्टर्स में एंगल निकालना है तो क्या करेंगे हम? इफ यू हैव टू फाइंड द दिस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या करना चाहिए हमें? दो वेक्टर है v1 एंड v2, इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा होगा ना आपने? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सो आपके जो कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं ना, उनको आपको स्लोली स्लोली इंप्रूव करना है। इफ यू वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? v1 का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, v2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, एंड देन cos थीटा। सो दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यही होता है ना? यस। ठीक है ना? अभी सपोज आपको लग रहा है कि आपके बिकॉज आगे भी फ्यूचर में भी अगर आप किसी भी फील्ड में रहते हो, ये डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे आप, और मैथ से तो कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे आप। इफ यू हैव एनी फीलिंग कि भी कि मेरे प्रोबेबिलिटी थ्योरी मेरी वीक है या मुझे लीनियर अलजेब्रा वीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कोर्स अटेंड करो एंड ठीक है, पहले नहीं आता था अब कर लो अटेंड। सो ये बिल्कुल बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा? cos थीटा क्या आएगा? v1 डॉट v2 डिवाइड बाय, ये उधर चला जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड v1 का एंड v2 का। ठीक है, तो इस तरह से हम कोसाइन ये एंगल निकाल सकते हैं। सो cos इनवर्स ऑफ दिस, ये एंगल निकाल सकते हैं। सो हम एंगल यूज करेंगे
instead of distance. So take a document D, append it to itself. Suppose हम एक experiment करते हैं, document D है, उसी में यानी कि document D में जो लिखा हुआ है वही उसके नीचे कॉपी कर देते हैं. Suppose जो भी लिखा है वही नीचे कॉपी कर देते हैं, यानी document D में जो लिखा है वही उसके नीचे कॉपी कर दिए. जो भी उसके ऊपर की suppose 10 लाइनें थी, नीचे वही कॉपी कर दी, वही 10 लाइनें नीचे कॉपी कर दी. अब इसका नाम हमने D रख दिया. So semantically D and D dash, इसका नाम D dash रखा है. ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट D में जो था वही D dash बना दिया. अब D and D dash have the same content, क्योंकि वही कॉपी. D dash को कैसे बनाया है? उसी चीज को कॉपी करके 2 बार लिख दिया बस. यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन 2 डॉक्यूमेंट्स काफी लार्ज हो जाएगा, बिकॉज जब हम इनको पॉइंट आउट करेंगे, मेरा D का वेक्टर अगर ये है तो D dash का वेक्टर काफी आगे पहुंच जाएगा, आपस में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, बट एंगल इनका 0 रहेगा. सो दैट्स व्हाई अगर 2 डॉक्यूमेंट अगर हम बनाते हैं D एंड D dash, वेयर D dash इज द जस्ट कि D की ही डबल कॉपी है, 2 बार कॉपी किया है, तब यूक्लिडियन डिस्टेंस इज नॉट ए गुड आइडिया. सिर्फ कोसाइन एंगल से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों सेम है. सो वी हैव टू रैंक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द एंगल विद द क्वेरी. सो फ्रॉम एंगल टू कोसाइंस, हमें पता है कि हम एंगल निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हम कोसाइन निकालेंगे. सो वी रैंक डॉक्यूमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल, जितना एंगल ज्यादा है, सो यानी कि एंगल डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन द क्वेरी एंड द डॉक्यूमेंट. सो रैंक डॉक्यूमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोसाइन. सो हमें पता है कि कोसाइन उल्टा होता है एंगल का. सो जब एंगल छोटा है, इफ थीटा इज लेस, तो कोसाइन क्या होगा? कोसाइन थीटा इज मोर. अगर एंगल कम है तो कोसाइन उसका ज्यादा होगा. सो दैट इज द रिलेशनशिप, कोसाइन हमेशा ज्यादा होता है. सो cos ऑफ 0 इज 1. सो जितना एंगल लेस है, कोसाइन उतना मोर है. सो वी हैव टू रैंक डॉक्यूमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल, ताकि वो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल बिटवीन क्वेरी एंड द डॉक्यूमेंट, एंड रैंक डॉक्यूमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोसाइन बिटवीन, कि उनकी कोसाइन वैल्यू से उनकी कोसाइन सिमिलैरिटी हमें बतानी. सो कोसाइन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. सो 0 1 है और 180 का 0 है कोसाइन. सो ये डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द कर्व ऑफ कोसाइन. आपको पता है कि 0 पे 1 होता है एंड इट फॉलोज दिस पाथ, कोसाइन सिमिलरिटी. अब हमें कोसाइन कंप्यूट कैसे करना है? वेक्टर तो किसी भी लेंथ का हो सकता है. सो वेक्टर कोई भी लेंथ का होगा. पहले तो हम L2 नॉर्म, L2 नॉर्म का मतलब है, सपोज हमारे पास वेक्टर x1 x2 है, तो L2 नॉर्म क्या करेंगे हम? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. ये उसका मैग्नीट्यूड है. सो दिस इज अ वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर. सो अगर x1 x2 वेक्टर है तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द L2 नॉर्म. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर. डिवाइडिंग ए वेक्टर बाय इट्स L2 नॉर्म्स मेक्स इट्स ऑफ यूनिट लेंथ. अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी लेंथ यूनिट हो जाती है. उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. सो अब उसमें सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगी. वी नो दैट एक वेक्टर में क्या होता है? लेंथ एंड द डायरेक्शन. अगर उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, लेंथ हमें कहां से मिल रही है? मैग्नीट्यूड से. सो अगर किसी भी वेक्टर को, सपोज x वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, सो मैग्नीट्यूड क्या है? ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? L2 नॉर्म, कि हमने x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इनका समेशन करके किया. सो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो एक यूनिट लेंथ का हो जाएगा. तो अब हम करेंगे क्या? सारे डॉक्यूमेंट को यूनिट लेंथ में ले आएंगे. D1 भी यूनिट लेंथ, D2 भी, यानी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी. अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे एक यूनिट हाइपरस्फीयर में है. हाइपरस्फीयर का रेडियस कितना है? यूनिट 1 इसका रेडियस 1 है, बिकॉज सारे डॉक्यूमेंट का लेंथ 1 है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट को उनके हमने डिवाइड कर दिया है बाय देयर मैग्नीट्यूड. सो नाउ 2 डॉक्यूमेंट. अब D एंड D डैश. D क्या था?
जिसमें सपोज 10 लाइन का था, वही 10 लाइनें 2 बार कॉपी करके 20 लाइन का डी डैश बनाया था। बट अगर हम L2 नॉर्मल लगाएंगे तो अब डी एंड डी डैश बोथ विल बिकम आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी, बिकॉज दोनों की लेंथ से हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। सो डी एंड डी डैश विल बिकम सेम। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स नाउ हैव द कंपेरेबल वेट्स। सो ये नॉर्मलाइजेशन हमें करनी है बिफोर डूइंग एनी कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन एंगल निकालने से पहले ये नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. सो आज हमने बेसिकली किया कि हमने TF-IDF की एग्जांपल भी देखी है, एंड वी हैव स्टार्टेड अबाउट द कि डॉक्यूमेंट एज ए वेक्टर देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में ना वी विल एक्चुअली टेक एक्चुअल एग्जांपल जिस पे हम ये लगा के देखेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी। सो दैट वुड टेक टाइम। तो हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेंगे एंड पूरा एक्चुअल डाटा लेंगे एंड एक्चुअल डाटा के ऊपर एक कोसाइन सिमिलैरिटी लगा के देखेंगे। सो पूरा एक्चुअली एक एक स्टेप वाइज हम करके देखेंगे एंड देन वी विल सी द इट्स एल्गोरिथम एज वेल, व्हिच इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, ओनली 5 लाइन एल्गोरिथम for this cosine similarity. So we will start from here only, from this concept कि डॉक्यूमेंट को एज ए वेक्टर की तरह देखना है, और फिर हमें उनकी डॉक्यूमेंट और क्वेरी का जो डिस्टेंस है वो कोसाइन एंगल निकालना है, और वो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल डाटा के ऊपर लगा के देखेंगे, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, एंड दैट वुड बी आवर अनदर वे ऑफ रैंकिंग द डॉक्यूमेंट्स। सो TF-IDF तो हमने देखा ही है, so this cosine similarity would be the another way of ranking the document. ये क्लियर है? Yes, sir.